A writer is someone who expresses his or her feelings through words. After my last podcast with Simarjeet Kaur, my Quora page and other social media handles were flooded with interest of writing. People came across with many of their questions, so I thought, why not to make another podcast? So, I'm Aryan Singh and welcome to my podcast, hashtag That Filmy Guy. Let's welcome Miss Jigyasa Raj Bajpayee. She was my school senior. Oops, I'm sorry, but I have mentioned that she was my crush. वो होता नहीं है स्कूल में सीनियर पे दिला जाता है तो कुछ वैसा ही सीन था. So, welcome to our show. Thank you, Aryan, for having me here. And this was just an unexpected introduction. That's my pleasure. तो चलिए मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ क्योंकि she won't be mentioning her credits. So she has 2 Instagram pages, Lekhika and When Writer Writes, and they both are amazing. You should check it out. And in spite of having 2 Instagram pages, she is a published author of Unsorted Feelings and co-author of Unspoken Words. So, dear senior, when did you realize that you have a soft corner for literature? Okay, so Aryan, I really didn't realize when I had a soft corner for literature. But yeah, I would mention one incident of my life. When I was in class 4th or 5th, and Deepti ma'am was our teacher. Oh, Deepti ma'am. Yeah, बहुत डांटती थी, बहुत ज़्यादा. She was our teacher actually, who don't know. People who don't know, Deepti ma'am was our teacher. Deepti Goyal ma'am, and now I don't know where she is. But yes, she was a great teacher. Wherever she is, we all love you. बहुत strict थी. Okay, so coming back to the topic. Yeah, so she used to make us write diary entry. तो जब उन्होंने वो होमवर्क देती थी बेसिकली हम लोगों को डायरी एंट्री का और हम लोग लिख कर जाते थे. सो अपार्ट फ्रॉम होमवर्क आई यूज्ड टू राइट इन घर ऑल्सो. अच्छा कि भैया लिखो डायरी एंट्री लिखते रहो. Okay, so you were enjoying that homework in a different way. हाँ, exactly. मतलब I was so much into literature कि चलो कुछ तो लिखते हैं, कैसा भी लिखेंगे. तो what I used to do was I used to steal diaries. अपने पापा की डायरी में चुराया करती थी फॉर राइटिंग. या एग्जैक्टली. और वो छोटी छोटी डायरीज हुआ करती दैट टेलीफोनिक वन एंड पापा यूज्ड टू राइट फलाने का नंबर जिसमें सारे फोन नंबर्स लिखा करते थे. एंड और उधर मैं जरा सी जगह में मैं अपनी डायरी एंट्री लिखती थी कि डियर डायरी दिस हैपेंड ऑल डे. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग. दैट वाज अ नाइस स्टार्ट. मतलब चिंगारी लग चुकी थी उस एज पे. यस. ओके, चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ फनी सा. आई डोंट नो वेदर इट इज अ मिथ और नॉट, बट जो गर्ल्स होती है उनको ज्यादा जल्दी फेम मिल जाता है, फॉलोअर्स मिल जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज. Okay, this is so ridiculous question and I don't know what I will answer. Yeah, but I feel that मतलब देखो एक लड़की होती है वो अपना कोई भी एक रैंडम पेज भी बना देगी ना, उसमें वो कॉपी करके पेस्ट करके कुछ भी पोस्ट करेगी, उसमें एंगेजमेंट आती रहती है. Okay, तो you sorry Aryan, I will interrupt you. Don't forget, she is a girl. You have heard of that dialogue? वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है. The famous one. So believe in that. I am sorry, but खून जलता है देख मतलब इतनी मेहनत करके कंटेंट डालो, उसमें कुछ 100-200 लाइक्स, वो भी जब बहुत ज्यादा शेयर हो जाए, और यहाँ पे वो अपलोड होते ही पार कर गए भैया 1000 व्यूज पार कर गए. क्या हो रहा है? I will like to say it's just a myth or not. I don't know. I can't claim or can't say anything like a statement कि यही है. लेकिन yes, it happens with girls. Let's just throw this question to audience. Yeah. Audience, एक बात पूछना चाहूंगा. YouTube और TikTok में गर्ल्स किस पे जल्दी फेमस होती है? Oh my God. I guess both. और TikTok more. No. Yeah, TikTok more, I guess. TikTok more. Because YouTube पे कंटेंट आता है, कंटेंट बिकता है, और TikTok पे फेस बिकता है. Okay. Yeah, हाँ, exactly. I totally agree with you, Aryan. It happens. TikTok is just for fun, I guess. Yes. लेकिन हाँ, but it's not that, good, or I don't know why. But I've seen claims. Yes. Blah, blah, blah. You know what I call TikTok? What? Cringe into 100. Oh my God. If you remember someone. Yeah, I totally remember. Okay. That was really good. So, question था, if you don't mind, I would like to ask. हाँ, बिल्कुल. Okay, so
ये अनसॉर्टेड फीलिंग्स और जो इंस्टाग्राम पेज है इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इसकी बैक एंड स्टोरी क्या है? बिकॉज आई गेस ये हार्ट ब्रोकन पे बेस्ड है. हाँ, बुक या इट इज. तो ये कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट से बेस्ड है या फिर आपके कुछ इमेजिनेशन टाइप? ओके, नो, इट्स एक्चुअली, लेट मी क्लियर दिस आउट कि कुछ दिमाग में नहीं पक रहा था. हाँ. रियल में हो रहा था. रियल में हो रहा था? ओह माय गॉड. It all happened in real life actually. See, मतलब I would like to say कि it was just a messier side of my story. ठीक है. The story, मतलब the book is all about, actually it's just not about heartbreak, but it is also about a love story. ठीक है, which I used to have once upon a time. So it all started with that. So it is not that simple going book. It has some beautiful moments which we all generally have with their loved ones, and then after you just get your heart broken और फिर आ जाते हो, कहती नहीं कटवा लिया. तो एक जमाने में हमारा भी कटा था. सबके साथ यही होता है. नहीं, तो ऐसा भी होता है. लोग बोलते हैं कि लड़कियां काट जाती हैं. आई वुड से लड़कियों का भी कटता है. इट हैपेंस डूड, इट्स लाइफ. तो बुक ऐसे ही आई कि मैं एकदम बढ़िया लिखना चालू कर दिया मैंने. I was all alone, heartbroken. I started jotting my things, my feelings, and I started posting them on a social media. And after that, people notice करने लगे कि ये क्या है. They also have, they were also curious about कि ये क्या है, मतलब सच है या क्या है. तो obviously I told them this is the truth. Obviously because it was. Yeah, it was. ठीक है. तो people started noticing me और मेरे followers बढ़ने लगे. अब कह लो सिंपैथी मिली या क्या मिला, बट कुछ तो हुआ उस टाइम. तो कुछ मतलब ऑब्स्टिकल्स आई थी अभी जब आपने स्टार्ट किया? जैसे मतलब एक ये तो नहीं होता कि वन गो में आपने पूरी बुक लिख डाली होगी. नहीं, ऑब्वियसली मतलब हुआ. मेरा तो ऐसा था कि पहले मैं लिखती, फिर मैं रुक जाती, फिर मैं लिखती, फिर मैं रुक जाती. और ऐसा नहीं था कि एक दिन में लिखती एक दिन में, वो महीने भर ब्रेक्स मिलने लगे. हाँ, इट टुक a lot of me to write a book. मतलब jotting down your feelings is just not easy, and putting them into words and presenting them to the world it is just not easy. पूरा बहुत कुछ लगता है यार. फीलिंग्स, इमोशंस, कि हाँ सामने वाले को पढ़कर दर्द हो जो मैंने महसूस करा. कि मैं प्यार में थी तो दुनिया भी प्यार में हो. Obviously. Yeah, exactly. Okay, so I think I just came across your page I think 2 years ago. Yeah. Okay, and recently मैंने आपका पेज देखा तो आपके पेज मतलब बीच में कुछ मतलब गैप आया था. हाँ. और वहाँ पे कुछ मतलब फॉलोअर्स का ड्रॉप हुआ था. तो मतलब आपने वो गैप किस लिए लिया था? Just for your book publications or something? Yeah, I was busy with my books. और भाई पढ़ाई लिखाई भी होती है. पढ़ना लिखना भी होता है. बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ मैं भाई. पढ़ाई भी है और बताया ना, दिल टूटा था भाई. गम तो होगा ना हर टाइम. इंस्टा पे थोड़ी ना डालना है. तो एक्चुअली देयर वाज अ टाइम व्हेन आई टुक अ ब्रेक बिकॉज I was heartbroken. It was just very I can't think about that moment now. It was a terrible moment. So this was the whole story. तो मैं लिख रही थी, मैं पढ़ रही थी, मैं उदास भी थी, बहुत सारी चीजें थी. तब मेरा ये नहीं था कि मुझे एक बुक ही लिखनी है. बस मैं उस टाइम लिख रही थी and people started noticing me कि what I'm writing. I gained lot of followers that time and after that it was a kind of a drop obviously as you say कि मैंने एकदम से पोस्ट करना बंद कर दिया था. तो होता नहीं है कि जब आप एक्टिव नहीं रहते हो कहीं पर भी तो लोग कहते हैं अरे ये तो फालतू का है. तो मैं महीनों तक मतलब इनएक्टिव थी इंस्टा पे कहीं पर भी हो. तो इसी वजह से दिस इज द मेन पॉइंट व्हाई आई ड्रॉप्ड फॉलोअर्स. अच्छा, जैसे मतलब होता नहीं कुछ राइटर्स का माइंडसेट होता है कि वो मतलब अपने ही अलग जोन में चले जाते हैं. हाँ. तो आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जैसे मतलब आपका भी स्टार्टअप हुआ है एंड यू आर गोइंग रियली ग्रेट. तो मतलब ऐसा कुछ आपकी थिंकिंग में कुछ चेंजेस आए हैं? या व्हाई नॉट. मतलब obviously you just don't always write about yourself. You get into somebody else's shoes. Yes.
You just do it. It's not Yes. just about always you कि हम अपना ही रोतड़ा लिख रहे हैं या अपना ही सब कुछ लिख रहे हैं. Sometimes it's about someone else. आप दूसरे को देख कर उसकी सिचुएशन को एम्पथाइज कर रहे हो और फिर लिख रहे हो. There are many a times I had faced so many times. मतलब अब तो ऐसा होता है मैं कुछ भी लिखती हूँ, people ask me कहाँ से कॉपी किया है, हाँ कहाँ से इंस्पिरेशन ली है, इंस्पिरेशन या आपकी स्टोरी है या हाँ. किसी और की है. तो yes I have to mention कि मेरा नहीं है सिस्टम, अब ये दूसरे का है. Okay, that I can understand because as being a cinematographer, मुझे भी काफी टाइम देखना पड़ता है कि बाहर के जो सिनेमाटोग्राफर्स होते हैं जी जी उनका कुछ अलग ही लेवल होता है. ऑब्वियसली तो लोग देखते हैं पोस्ट प्रोडक्शन का काम कि ये फाइनल रिजल्ट कैसे आया. मैं देखता हूँ कि प्री प्रोडक्शन कैसे हुई, मतलब इसमें उन्होंने कौन से गियर्स यूज किए होंगे, किसमें उन्होंने गोप्रो से शॉट लिए होंगे, किसमें उन्होंने ड्रोन से शॉट लिए होंगे, किसमें किस एंगल से शॉट लिए होंगे. एग्जैक्टली इट हैपेंस. जैसे कि अब मैं ही हूँ, हाँ सपोज मैंने कुछ लिखा, ठीक है, मैं भी लिखती हूँ, सामने वाला भी लिखता है, तो उस चीज के दो अर्थ निकल आते हैं. यू हैव टू मीनिंग्स ऑफ इट. यस. एक सामने वाला और सोचेगा कुछ कि तुमने इस विजन से लिखा, हाँ. और मैं कुछ और सोच कर लिखूंगी. तो कहते हैं ना कि इफ यू पुट समथिंग आउट हाँ. of a mouth to the universe, it gives back the same thing. It's just not like that. कभी कभी अलग चीजें हो जाती हैं. हम लोग कुछ लिखते हैं, कई लोग ऐसा होता है बहुत अच्छा बता देते हैं जो हमने भी नहीं लिखा होता है, और कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत नॉर्मल है यार, क्या बिकॉज सी आई एम अ सिनेमाटोग्राफर एंड अगर मुझे कुछ विलेज का कोई सीन शूट करना है, फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी है, वो अपना काम कर रहा है और मुझे शूट करना है वहाँ पे, तो मैं तो उस पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ ना कि मुझे क्रिएटिविटी दिखानी है, डाइवर्सिटी दिखानी है, बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. और मे बी हो सकता है कुछ फॉरेन के लोग देखें तो वो लोग ये सोचे ये पॉवर्टी को दिखा रहा है. तो ऐसा आपके साथ कभी होता है कि आप मतलब कुछ अलग चीज दिखाने जाती हो बट लोग कुछ उसका कुछ और मतलब भी दिखा लेते हैं? नहीं होता है, सबके साथ ही होता है. आई गेस इफ यू आर राइटिंग समथिंग पीपल नोटिस करते हैं तो 10 चीजें निकलती हैं. थोड़े दिन पहले की बात है, आई हैव रिटन समथिंग कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ यू, सॉरी आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेलीविजन बट आई एम फॉन्ड ऑफ यू. और पब्लिक नॉर्मल क्राउड ने कमेंट करा कि यू आर फाउंड ऑफ मी, please say my name. These are the things people face. Yes. So it's very normal कि आप अगर कुछ पोस्ट कर रहे हो तो प्रो कॉन्स दोनों है इसके, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है. कमेंट आप दोनों सुनने के लिए तैयार हो जाओ इफ यू आर पुटिंग समथिंग. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद दिस. ओके. हाँ. अच्छा, ये आपने बुक लिखना कब स्टार्ट किया था? Book लिखना, it was my second year, I guess. Let's not just make it complicated. आपको कितना टाइम लगा था बुक लिखने में? 2.5 years, I guess. 2.5 years. Yeah, I told you ना, इतना टाइम इसलिए लगा कि मैं महीनों का गैप ले लेती थी, कुछ लिखती थी और फिर आराम से लिखती थी. फिर क्योंकि एक्चुअली वो पूरा सीन नहीं था ना कि मैं किताब ही लिख रही हूँ, ये था कि मैं कुछ लिख रही हूँ. ठीक है, जब 2.5 साल के बाद जब मैं ओवरकम हुई उस चीज से, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार इतना प्यारा कंटेंट है. इट कैन बी पुट टुगेदर टू समथिंग, टू फॉर्म समथिंग, and it came into this unsorted feeling. Yes. As an unsorted feeling. For our listeners, this book Unsorted Feeling is live on Amazon. Yeah. And which publication is this? Fantasy publication. Okay, nice. So you can check it out. And do you have support or we can say मतलब कुछ लोग नहीं होते जो आपके साथ रहते हैं, आपको इनकरेज करते हैं? जी जी. फैमिली एंड फ्रेंड्स. तो आपके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ? Yeah, obviously my mom dad were always supportive. My sister was supportive. सोचो मैं लिख रही होती थी, she used to make a cup of tea कि लो दीदी पी लो. She used to do such things. My friends were like very supportive, incredibly supportive. Obviously without family friends, what a human can do if you don't have them, right? Yeah. बिकॉज होता नहीं कई बार कि इंडिया में कुछ मतलब होता है कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, यही सब मेजर कुछ चीजें मानी जाती हैं. एंड अगर मैं इनफैक्ट सडनली घर पे जाके बोलूं दैट आई वांट टू बिकम अ राइटर, तो मतलब आधे लोग के हार्ट फेल हो जाएंगे ऑलमोस्ट. हाँ, आधे लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो ये सब. ओके, नहीं ऐसा क्योंकि मेरे साथ होता है, कैमरा उठाता हूँ तो बोलते हैं फोटोग्राफर बनना है क्या, शादियों में शूट करना है जाके. ऐसा होता है. It happens, obviously it happens. I'm the first person in my family, you know, to become a writer or whatever. ठीक है, तो it took a lot of courage for me also to explore things
you know, and to bring that this passion of mine converting into something else, profession or whatever, और घर में बताना, उनको convince करना, मुझे कुछ नहीं लगा. I just simply told them, yes, I really want to do this. और obviously आपके पेरेंट्स आपको देखते हैं, because I told you ना, मैं बचपन से लिखती आ रही हूँ कुछ ना कुछ, कुटर कुछ ना कुछ लिखती आ रही हूँ. People used to see me कि कुछ लिखती जरूर है, लेकिन मैंने कभी इतना बताया ना, खुलकर बताया नहीं कि मैं क्या लिखती हूँ, अच्छा बुरा कुछ भी. तो मैं I was always a diary person. I always used to write a diary कि दिन में क्या हो रहा है. Started from फलाना टिमकाना class, as I told you. Yes. ठीक है, तो इट ऑलरेडी हैपेंड, इट टुक प्लेस इन मी. वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था. इंटरेक्शन, जैसे नहीं मैं किसी का ऑथर का इंटरव्यू देख रही हूँ, ठीक है, और या किसी की, मैं बहुत नॉवेल्स पढ़ती हूँ, ठीक है, वो कहो मतलब मैं अपनी किताब ना पढूं, एंड आई एम इनटू बुक्स. ठीक है, तो इट हैपेंस. As like being a cinematographer, my inspiration is Sam Coder. What's yours? Mine is Chetan Bhagat, of course. Chetan Bhagat, he's a great writer. Very great writer. And Nikita Singh. Okay. John Green too. Yeah, exactly. Okay, so मतलब आपने जो पब्लिशिंग और मार्केटिंग का सब वर्क है, ये सब आपने अकेले संभाला था? हाँ, obviously. Okay. नहीं मतलब होता है ना, कुछ लोग अपना काम बांट देते हैं. नहीं, मेरा कुछ नहीं था. I was the only person to take care of this, that and everything. And my editor who was editing my book was very very helpful. उसका नाम इशिका है, इशिका भारद्वाज. She is my editor. She helped me through lot of it. And एक और है जो नहीं कवर के लिए होता है, कवर पेज, कवर डिजाइन, उनका नाम है अभिषेक. He also helped me. He used to show me different types of cover pages, and I used to deny it. Nahi Abhishek, it's not looking good. It's not looking good. Yeah. And Ishika was always there, you know, by my side. He nahi chakya, so you're writing good. This cover will be looking good. So yeah, obviously she helped me a lot. Okay. Another question for you. Are you ready? Yeah, obviously. Don't laugh, please. Achha, okay. Because I had got this question somewhere. That person was asking that. Okay, I had written one book. Okay, he has written almost 160-170 pages, a whole book. Yeah. Okay. And you don't know the other process apart from writing, that how to publish it, how to market your book. Okay. That's what. So can you explain this in short? Yeah, surely. Well, I don't know why people find it so difficult to publish their book. Although I did it too. I find it too difficult. Okay, but when you get into it. Process is very easy. आप book लिखो normally, find a good publisher house actually, ठीक है, and a good payment obviously. कभी लक काम कर जाता है तो कम पैसों में भी किताब मतलब पब्लिश हो जाती है, ठीक है, and there is a range कि कितनी मतलब you know लाइफ टाइम तक ही छपवानी है या कुछ मतलब फलाना, जैसे कि 500 कॉपीज. हाँ, यस, ऐसा कुछ भी. और ऐसे हमारी किताब पब्लिश हो जाती है. नाउ इफ वी कम टू मार्केटिंग, वी कैन शेयर, वी हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स. डिजिटल प्लेटफॉर्म है. यस, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और ज्यादातर आजकल इंस्टा बहुत ट्रेंडिंग है. मतलब अब डालो, बहुत सारे बड़े बड़े पेजेस होते हैं. आस्क देम, दे some are like paid, some are not. अगर आपका बजट नहीं है इतना तो गो फॉर फ्री पेजेस हु हैव मेनी फॉलोअर्स, ठीक है, थाउजेंड्स में. तो या डू इट. अच्छा, बजट की बात आई है. फॉर एग्जांपल, देयर इज एक्स पर्सन हु इज अ ग्रेट राइटर. जी. ही हैज रिटन हिज बुक, बट he do not has that much of budget that he can go to a publisher और editor, और जो आपने जैसे बताया कि कवर पेज जो डिजाइन करता है, बिकॉज उन सबको भी पेमेंट चाहिए होती है अपने. Obviously. अगर उसके पास बजट नहीं, तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर उसका टैलेंट बहुत अच्छा है तो कोई पब्लिशर उसकी बुक को देख के वो अपने एंड से पब्लिश करे, ऐसा कुछ? Yeah, it happens sometimes. You just need to send your script to that particular, you know, Okay, we just need to author. Yeah, it happens. आप बढ़िया आपकी स्क्रिप्ट है, अगर आपके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, no worries. ठीक है, and you really want कि आपको देखें लोग, आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, अपनी पोस्ट डालो, जेन्युइन और डिसेंट जो भी आप लिख रहे हो, और रियल लिखो. ठीक है, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो. हाँ, ये तो जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए, तभी पब्लिक इंप्रेस होगी. कुछ देर के लिए तो आपके 10 फॉलोवर्स आ जाएंगे, उसके बाद आपको अनफॉलो कर दिया जाएगा.
अच्छा कंटेंट लिखो, डालो। और अगर आपको बुक पब्लिश करनी है, ठीक है, फाइल दैट होल स्क्रिप्ट एंड सेंड इट टू योर फेवरेट ऑथर इफ यू वांट, मतलब देम टू पब्लिश योर बुक, दैट्स इट। Okay, so it means if you have talent, then nobody can stop you. Yes, and rather than हमारे पास अब तो क्या कहते हैं, पैकेजेस भी आ गए हैं कि 8,000 में ऐसा होता है, 10,000 में इतना होता है, और सब कुछ उसी पैकेज में आता है। कवर पेज, आपकी एडिटिंग, आपकी प्रूफ रीडिंग, देयर आर सेवरल थिंग्स, तो सब कुछ आता है उसी में। Okay. अच्छा, for example, it's a lockdown period actually. Yeah. So does that affected the writers because अभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए काफी सारे, बट उनके 60% ऑफ सेल्स स्टोर्स पे होती है। फॉर एग्जाम्पल चेतन भगत, अगर हम लोग किसी भी स्टोर में जाते हैं, देखते हैं चेतन भगत की बुक है, वी नीड टू बाय दैट। ऑनलाइन में इतना नहीं होता है उनके में, क्योंकि उनके ऑफलाइन ज्यादा मार्केटिंग होती है, वर्ड ऑफ माउथ से कहते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, इससे मार्केट इफेक्ट हुआ है? ऑब्वियसली, मतलब इफेक्ट हुआ है बहुत कुछ। स्टोर्स में जैसे कुछ किताबें लगी रहती हैं, वी गेट मतलब अट्रैक्टेड बाय द कवर पेज एंड प्लान का ना, तो इट हैपेंस। एंड मोर ओवर, अब तो जब लॉकडाउन था तो सभी बंद था, तो Amazon, फ्लिपकार्ट, व्हाटएवर इट इज, सभी बंद था, सारी बुक्स आउट ऑफ स्टॉक ही दिखाएंगी, तो ऑब्वियसली इट इज अफेक्टेड, बहुत ह्यूज नुकसान हुआ है। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन था छोटा सा कि यू हैड हर्ड अबाउट Amazon Kindle, right? Yeah, I have. That tablet that is just for the books. Books, yeah. So can that replace a whole book, whole paper book actually? Yeah, it can. It has actually. Because I guess that feeling of just holding that book and reading is somewhat different, like when you see it on screen. Yeah, but I personally love a book in my hand rather than having Kindle in my hand. Yeah. Obviously. Yeah. Many people, asked me to buy Kindle. Okay, I always told them I'm a book person, book lover. So मतलब मैं तो सजेस्ट भी यही करूंगी, सब लोग किताब लेकर पढ़ो, Kindle is what, क्या है, नई जनरेशन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। इट्स बीन सो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, आई अंडरस्टैंड, बट कुछ चीजें पुरानी ही टाइप में अच्छी लगती हैं, है ना? फीलिंग आती है। साइड में कहते नहीं है कि गैस का खाना सब खाते, लेकिन चूल्हे के खाने की बात अलग होती है। वाई भी से, क्योंकि कुछ पुरानी चीजें अच्छी चीजें होती हैं यार। Exactly. That was a really nice answer. Yeah. Yeah, right. Okay, so Miss जिज्ञासा जी, ये बताइए कि क्या बिना इमोशंस के कोई किताब लिखी जा सकती है? No. Obviously no. A big no. Okay. Yeah. Because I strongly believe कि if you don't feel anything, you can't write anything. So you can't simply go to someone and say I love you without any emotions. Come on, like nobody can. ठीक है, अब ऐसे ही करना हो तफरीबाजी में, that is अलग thing. But ऐसे you can't go to someone and say I love you. ठीक है, मारेगी तुमको, ठीक है, obviously. अच्छा, the other thing is this. Good example for explaining you all कि you can't write a book without emotion is कि चलो हम लोग स्कूल डेज में आते हैं एंड हम लोगों को होमवर्क मिला करता था, या हम लोग क्लास वर्क भी करते थे कि एक टीचर हम लोगों को एक स्टोरी लाइन दे देती थी और बोलती थी कि 150 वर्ड्स लिख कर आना। ठीक है, हम लोग नहीं लिख पाते थे, कई लोग लिख लेते थे। जो लोग लिख लेते थे वो एक लाइन को सोचते थे, अपने आप को फिगर करते थे उस सिचुएशन में। लाइक जैसे कोई सीन है, उसमें एक लड़का जंगल में खड़ा हुआ है, उसके आगे स्टोरी बनानी, तो अपने आप को रख के देखेंगे, रख कर देखते थे कि मैं जंगल में हूँ, ठीक है, हर जगह पेड़ है, शेर की आवाज भी आ सकती है, वहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वहां पर पावर हाउस भी हो सकता है एज अ सेवियर। तो वी हैव टू व्हाट, कीप योरसेल्फ in that situation. आप हो जंगल में, you're standing over there, now think. So it happens, you just can't simply go without emotion anywhere. You can't write. Yeah. सुना, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, राइटर्स के पास इमोशन होते हैं, सुन लो ध्यान से। I mean that जो लोग मुझसे पूछ रहे थे क्वेश्चन, अच्छा, they think writers don't have emotions. They was thinking that यार लिखने में क्या इमोशन का यूज होता है? नहीं होता है। Yeah, okay, I guess ये काफी लंबा पॉडकास्ट हो गया है। कुछ लास्ट मोमेंट टिप या फिर कुछ आप बोलना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अपना दिल तोड़वा घर पे बैठे हुए हैं? अच्छा, यू मीन कटवा के बैठे? हाँ, या एग्जैक्टली कटवा के बैठे हुए हैं। ओके, सो थोड़े दिन पहले आई हैव रिटन वन कोट एंड इट सेज योर सेल्फ रिस्पेक्ट नीड टू बी स्ट्रॉन्गर देन योर फीलिंग्स।
That's some. So everybody who is listening to me, they really need to, know of ki you need to raise your standards and self-respect rather than your feelings for others. Because नहीं तो फिर कट जाएगा. Okay, so that was really funny. Yeah, that was really funny. Okay, that was a lovely conversation. Thank you for coming to my show. Thank you for having me. Okay, and that's a wrap for this episode. I hope you all guys liked it. और अगर पसंद आया हो तो यार इनको फॉलो करो, हमारे सीनियर क्रश को फॉलो करिए, लेखिका एंड वेन राइटर राइट्स, और इनकी बुक भी जरूर चेकआउट करिएगा, अनसॉर्टेड फीलिंग्स को. इन Amazon दो. ओके. और रुकिए इनको भी तो फॉलो करिए as Techno Aryan. Oh yeah. That's a unique name. Yeah, very unique. Okay. And a big shout out to Rahul Singh. Because of his content writing work, this podcast has been more interesting. So keep creating, keep exploring, and I will see you in my next one.